Hello everyone. Very good afternoon. Sorry. Very good morning to all of you. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. I hope you have all read the instruction or notification as given on the Google Classroom. Have you all read that? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Have you done your task accordingly? Yes, sir. Okay, so let's start Yes. with some students. Uh, I want to ask from Praduman. Praduman, Yes, sir. क्या आप लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे? Yes, sir. So, what is the one difference between centrifugal and reciprocating pump? The difference between centrifugal and reciprocating pump is, sir, centrifugal pump. It is one of the rotary pumps which use kinetic energy of impeller, Yes. and reciprocating pump is it is a positive displacement type pump which is forced by piston. Okay. Good. Thank you, Mute sir. yourself. Next is Yogesh Mali. Yes, sir. Tell me about the second difference. सर मैं अभी क्लास में प्रेजेंट नहीं था सर. अब लास्ट क्लास. सर दो तीन मतलब दो पिछले 2-3 क्लास से. तो वीडियो आप क्यों नहीं देख रहे हो? जो हम लोग वीडियो इतना मेहनत से पोस्ट कर रहे हैं रेगुलरली, नोट्स पोस्ट कर रहे हैं रेगुलरली, तो सर उसका कुछ एक्चुअली यूज मैं नहीं है. मतलब मैं उसको बंद कर दूं वो प्रोसेस? सर सर मेरी नानी की डेथ हो गई थी सर, तो वहाँ गया हुआ था मैं सर. चलिए ठीक है. दैट्स एंड नेक्स्ट इज प्रियल जैन. Yes, sir. Tell me about the second difference between centrifugal and reciprocating pump. So in centrifugal pump, the discharge is continuous and smooth, while in reciprocating pump, the discharge is fluctuating and pulsating. Why it is fluctuating in reciprocating pump? So because the piston moves and due to it, water comes in and it is Yes, not continuous because flow. to and fro motion of the piston. It is because of to and fro motion of piston. When piston moves leftward direction, according to our fig diagram, when it is comes leftward direction, then the water comes from the cylinder to the storage tank. So it is fluctuating. Okay, good. Next is Jayant Pal. Jayant Pal, and I'm just uh, seeing that so many students are leaving the class because I'm asking the questions. Okay, the attendance will be taken right now, and that will be the consideration for today's attendance. I have already told you in the Google Classroom. So this kind of offense will not be tolerable in the future also. Next is Yashpal Singh. Yashpal Singh. सुना ही नहीं दे रहा इसको. चलिए आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग. सो very interesting topic, and it will take some 3 to 4 lectures, which is because to understand the engine, IC engine, we have to very careful with the thermodynamics processes, and so many components, or we can say the mechanics behind the motion of the piston,
So how the power is generated, how which kind of energy is going to convert it in which type of energy. So we have to understand each and everything, and we will see so many beyond the syllabus, so many things beyond the syllabus, so that because according to the syllabus only you are going to understand the basic concept, but every day you are seeing so many applications of engines in your real life. So you have to understand, you have to discuss to someone who is not aware to the engines, how it works. So you have to understand, and you are the you will become an instructor for this IC engine, how it works. So this topic is going to be means beyond the lecture plan uh, as per the RTU syllabus, but I'm going to take 2 extra lecture for this particular topic. Okay, it will be fine for all, or we need to move faster, just skipping the some important topics from this particular course. Is it okay for all? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Only 47 students. Let me send a message to the group. Okay. The screen is visible. Okay, right? Yes, sir. Contents we are going to see. This is as per the RTU syllabus. Okay. So today we will see the introduction to the engine, introduction to IC engine, nomenclature, and thermodynamic processes, which are included in the whole thing. Means what are the strokes? You know, 2-stroke engine, 4-stroke engine, 4-cylinder engine, 2-cylinder engine. What are the differences? What is the CC? सीसी का मतलब क्या है? हम लोग सुनते हैं 150 सीसी का पल्सर है, 120 सीसी का है, 1400 सीसी की कार है, 1800 सीसी की कार है, 1600 सीसी की कार है. So what is the actual meaning of the CC? That will be defined in the important terminology. एयर स्टैंडर्ड साइकिल एंड एफिशिएंसी. कुछ एयर स्टैंडर्ड मतलब एक तरह से आइडियल बनाया गया है साइकिल की, किस साइकिल पे काम करता है. जैसे हमने अभी देखा था स्टीम टरबाइन या पावर प्लांट्स में कि जो थर्मल पावर प्लांट है वो दैट वर्क्स ऑन रैंकाइन साइकिल. उसी तरह इसमें भी कुछ साइकिल्स हैं, क्योंकि हमने देखा था उसमें एक तरह की पावर प्लांट थी जिसका नाम था डीजल इंजन पावर प्लांट. ओके. सो उस केस में डीजल इंजन का मतलब यहाँ पे भी आएगा डीजल इंजन. तो वो डीजल इंजन किस साइकिल पे काम करता है वो भी हम देखेंगे. मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था. डीजल और ऑटो होता था. ऑटो पेट्रोल इंजन के लिए है और डीजल इंजन के लिए. तो क्लासिफिकेशन भी देखेंगे, एफिशिएंसी ऑफ आईसी इंजन and then the performance parameter in the engines. Okay, so let's start with the today's lecture, that is L10. So L10 में हम देखेंगे introduction to engine, introduction to IC engine, nomenclature in IC engine and thermodynamic process. ये कोई कोर्स में नहीं है थर्मोडायनामिक प्रोसेस, बट हमें समझना पड़ेगा थर्मोडायनामिक प्रोसेस कौन सा इंक्लूड है इस पूरे होल टॉपिक में, कहाँ पे कैसे इसका यूज क्या है, कैसे वर्क डन निकालते हैं, कैसे हीट सप्लाई निकालते हैं. उसके लिए हमको थर्मोडायनामिक प्रोसेस समझना पड़ेगा. और ये शायद आप लोग पहले भी जानते हो, पीवी और टीएस डायग्राम whenever you have prepare for IIT JEE, जो भी आप लोगों ने 12th में भी पढ़ा है इसको वैसे तो. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू इंजन. इंट्रोडक्शन टू इंजन. अब ये जो बाइक का आपको दिख रही है राइट साइड में, दिख रही है बाइक का कुछ पोर्शन दिख रहा है. बाइक है,
यस Yes, सर। sir. Yes, sir. तो इसमें मैं कुछ नंबर टिक कर रहा हूँ, आप लोग बताएंगे इंजन कहाँ है, ठीक है? आप लोग बताएंगे इंजन कहाँ है। 1 2 3 4 एंड 5। नंबर बताइए कौन सा इंजन? 4 Four, four. 4 सर। सबको Four, सभी sir. लोग 4 बोल रहे हैं। यस सर। Two. 2 एनीवन एल्स? Two, sir, two. 2 और सर सेकंड वाला। सेकंड और कोई? Sir, 2 कितने and लोग 4 together. टुगेदर? और आगे बताइए, और कोई? बेटा 47 स्टूडेंट है, कोई तो बोलो यार। इसमें से कोई और पार्ट आपको लगता हो आपने मुझे तो इतना मतलब लगता है कि मतलब कम से कम चलाया तो नहीं, छोड़ो चलाया नहीं होगा बाइक, देखा तो होगा कि वो भी नहीं देखे हो बाइक? नहीं देखा हो क्या? देखा है ना सर ने। देखा है ना। हाँ, कोई और बताएगा प्लीज? टू वाले भी कुछ हैं और 4 वाले भी कुछ हैं, और एक स्टूडेंट ने बोला 2 and 4 टुगेदर। 2 and 4 टुगेदर। 3 कोई बता रहा है? 5 1 नहीं, मतलब कंफ्यूजन है। मतलब मैं जो सोच रहा था उसमें मैं सक्सेसफुल रहा कि कुछ स्टूडेंट को पता नहीं होगा, कुछ स्टूडेंट को पता होगा। सो 4 इज द करेक्ट आंसर। दिस इज इंजन। दिस इज इंजन। ओके, मुझे इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। कई लोगों को नहीं पता है इंजन कौन सा है, ठीक है? जो बाइक शुरू से ही चलाते हैं, अंडर 18 भी बाइक चला रहे हैं, उनको भी नहीं पता है, ठीक है? 50 साल के भी हो गए, उनको भी नहीं पता इंजन कौन सा है। सेकेंड इज द गियर बॉक्स। यहाँ पे गियर बॉक्स है जो कंट्रोल करता है स्पीड को, ओके? और ये सब तो पता नहीं क्या, टूल बॉक्स है, कई सारी चीजें हैं। तो दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग 4th यूनिट में पावर ट्रांसमिशन है जो दूसरा पार्ट है। द 4th पार्ट इज वी आर गोइंग टू स्टडी आईसी इंजन। यहाँ पे आईसी इंजन क्यों है अभी देखेंगे हम लोग। तो इंजन क्या है पहले तो? एन इंजन। एम आई ऑडिबल टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. यस सर। Okay. An engine is a machine designed to convert one form of energy into mechanical energy. ध्यान रहे, कोई भी एनर्जी हो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको बोलेंगे इंजन। अब पावर प्लांट में भी इंजन है, इसका मतलब कोई एक तरह की फॉर्म थी, उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया गया है। जो विंड टरबाइन थी वो भी एक इंजन है, ठीक है? लेकिन अगर हीट इंजन को कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें? वर्क में। वर्क इज नथिंग बट इट इज मैकेनिकल एनर्जी। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी है एक्सेलरेशन है। अगर डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी है। अब वो काइनेटिक एनर्जी कैन बी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, कैन बी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो द मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना फ्रॉम द हीट एनर्जी, दैट इज हीट इंजन। और जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आईसी इंजन, इट इज अ हीट इंजन। ओके, अंदर से कैसा दिखता है ये इंजन? ऐसा देखें आप लोग कभी? ये कितना स्ट्रोक का इंजन है? 4. 4। एनीवन? 4 2 6 8। सिर्फ एक स्टूडेंट ने जवाब दिया अभी। 4 4 Four, sir. 4, sir. 4
द क्वेश्चन इज रॉन्ग. फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज रॉन्ग. पहली बात, हमने लास्ट क्लास में जब हम रेसिप्रोकेटिंग पंप देखे थे तो स्ट्रोक का मतलब क्या था? पिस्टन का मोशन, इधर से जाए तो एक स्ट्रोक हो गया, वापस आए तो 2 स्ट्रोक हो गया, फिर से इधर जाए तो 3 स्ट्रोक है. स्ट्रोक का मतलब है ये, ठीक है. तो यहाँ तो मोशन कर ही नहीं रहा है. जब मोशन कराएंगे तब बता सकते हैं कि स्ट्रोक है. मतलब जो क्वेश्चन है वो इररिलेवेंट है, गलत है. यहाँ मैं ये पूछ सकता हूँ कि ये इंजन 2 सिलेंडर है या 4 सिलेंडर है, तो क्या बताएंगे आप? 4 सिलेंडर है. यहाँ पे 4 सिलेंडर्स हैं. ये आपको क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है कट करके सिलेंडर का कुछ पार्ट, ताकि आपको पिस्टन दिखाई दे सके. 4 सिलेंडर है ये, 1 2 3 एंड 4, 4 सिलेंडर है, ठीक है. तो क्वेश्चन फॉर स्ट्रोक इज इररिलेवेंट, रॉन्ग क्वेश्चन. ओके. So the heat engine must convert it to the mechanical energy. This is known as engine. Okay. Heat energy, sorry, heat engine मैंने बोल दिया. Heat energy must be converted into mechanical energy. This is done by heat engines. Okay. What is engine? Any form of energy is going to convert it to mechanical energy. That is known as engine. Next, introduction to the IC engine. Introduction to IC engine. वन बाई वन मैं पढ़ूं अगर इसको, तो आप देखेंगे, आप लोग भी पढ़िएगा इसको, मैं भी बोल रहा हूँ, सुनिए इसको. An internal combustion engine is an engine in which the combustion of fuel occurs in a combustion chamber inside an integral to the engine. Integral मतलब उसके साथ लगा होगा. Inside and integral to the engine. Second is, in an internal combustion engine, it is always the expansion of the high temperature and pressure gases that are produced, which apply force to the movable components of the engine. Movable मतलब जो मूव हो सके, तो ऐसा कंपोनेंट जिस पे फोर्स अगर लगाएं तो मूव करने लगे. ऐसा नहीं कि वो कहीं फिक्स हो, मूव ही ना कर रहा हो, ठीक है. जिसमें एक एग्जांपल है सच एज इन पिस्टन और टरबाइन ब्लेड्स. पता है आपको टरबाइन ब्लेड्स क्या है? मूवेबल पार्ट्स है. जब हम उस पे स्टीम को इम्पिंज करते हैं, इम्पैक्ट लगाते हैं स्टीम से, तो क्या होता है? टरबाइन रोटेट होने लगती है. अब अगर हम पिस्टन पे मोशन दे दें, पिस्टन पे फोर्स लगा दें, तो पिस्टन मूव करेगा. पिस्टन मूव करेगा तो कुछ और भी मूव करेंगी. और वो मूवमेंट क्या है? वो मूवमेंट एक्चुअल में क्या है? काइनेटिक एनर्जी. ओके. तो काइनेटिक एनर्जी मीन्स मैकेनिकल एनर्जी. थर्ड पॉइंट इज फॉर एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन. जब हम इंटरनल बार बार बोल रहे हैं, इसका मतलब एक्सटर्नल कुछ होगा. So external combustion engine such as a steam or Stirling engine, in which Stirling engine एक नया अलग टाइप का इंजन था जिसको एक्सटर्नली कंबस्ट किया जाता है. तो इसका यूज उतना नहीं हो रहा है पहले, लेकिन यूज होता था स्टीम. देखिए, अब ध्यान से देखिएगा. स्टीम और स्टर्लिंग इंजन in which the energy is delivered within a working fuel heated in the boiler by fossil fuel. Fossil fuel can be wood burning, nuclear और you can say solar. ओके. फॉसिल फ्यूल से हम लोगों ने देखा था 3 तरह की होती है. उसके बाद वुड अगर जला के करें, न्यूक्लियर फ्यूल यूज करें, या सोलर सेल से यूज करें. अगर हम हीट दे पा रहे हैं और स्टीम को बना पा रहे हैं, स्टीम से हम टरबाइन को रोटेट करा ले रहे हैं, तो दैट टाइप ऑफ इंजन इज नोन एज एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन. सो दिस इज द डायग्राम फॉर इंटरनल कंबस्शन इंजन, राइट? This is the diagram for internal combustion engine. Is it right? Is it true? सभी सो रहे हैं क्या? सर ये तो एक्सटर्नल हुआ ना. एक्सटर्नल है? यस सर. वही चेक कर रहा हूँ मैं कि सो रहे हैं आप लोग की जगह हुए हैं. दिस इज एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन. पिस्टन जो मूवेबल पार्ट है, यहाँ है पिस्टन. पिस्टन पे डायरेक्टली जो ये फ्यूल से जो गैसेस बन रही हैं, जिससे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की गैसेस बन रही हैं, वो डायरेक्ट पिस्टन को मूव नहीं करा रही हैं. ठीक है. कैसे हो रहा है? उससे हम स्टीम बना रहे हैं, स्टीम को भेज रहे हैं उसके ऊपर, तब पिस्टन मूव हो रहा है.
टू एंड फ्रो, लेफ्ट टू राइट, उसकी वजह से ये मूव हो रहा है, इसकी वजह से ये जो पूरा रॉड है वो रोटेट हो रहा है, इसकी वजह से ये व्हील्स रोटेट हो रही है। दिस इज कंप्लीटली एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। जैसे हम पहले के रेलवे इंजन थी जिसको बोलते थे क्या बोलते थे, भाप इंजन, स्टीम इंजन, याद है आपको, सुने हो आप लोग कभी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। ये समझ में आ रहा है, डिफरेंस डायग्राम बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल, डिफरेंस डायग्राम समझ में आ जाइए। कंबस्शन कहाँ हो रहा है? यहाँ हो रहा है, कंबस्शन यहाँ हो रहा है, इसमें एक्सटर्नल इंजन में। उसमें वाटर को गर्म करके हम स्टीम बना के स्टीम को फ्लो कराएं तो स्टीम इस पे फोर्स लगाएगी, पिस्टन मूव करेगा, पिस्टन टू एंड फ्रो मोशन करेगा, उसकी वजह से क्रैंक शाफ्ट देखेंगे अभी कंपोनेंट्स में, मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ तक हमको समझना है, आगे क्या हो रहा है वो देखेंगे अभी। यहाँ तक मूव हो जा रहा है, ठीक है, ये मूव हो गया, काइनेटिक एनर्जी मिल गई हमको, उस ट्रांसलेशनल मोशन को रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन को रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारी गाड़ी या व्हीकल्स जो भी है उसको मूव करा सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज इंटरनल कंबस्शन इंजन, जिसमें कंबस्शन कहाँ हो रहा है? इंजन के अंदर हो रहा है। देखिए कंबस्शन यहाँ हो रहा है इंजन के अंदर, यहाँ कंबस्शन कहाँ हो रहा है? बाहर हो रहा है, ये इंजन है। कंबस्शन कहाँ हो रहा है? इंजन के बाहर। दिस इज द एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन, दिस इज इंटरनल कंबस्शन इंजन। ठीक है, तो जो ये डिफरेंस मैंने लिखा हुआ है पढ़िए इसको आप लोग और बताइए कौन सा इंटरनल कंबस्शन इंजन के लिए है, कौन सा एक्सटर्नल के लिए है, ऊपर और नीचे बताइए। पढ़िए 225 एंड 225। पहला मैंने हटा दिया है, वो डायरेक्टली क्लू दे रहा था कि कौन सा इंजन है। सो आई हैव कंप्लीटली सर ऊपर वाला इंटरनल के लिए है। इंटरनल के लिए। सर ऊपर वाला इंटरनल है। सर ऊपर वाला इंटरनल। इंटरनल। Yes, sir. ऊपर वाला इंटरनल है। द कंबशन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस इनसाइड द इंजन सिलेंडर, यहाँ पे भी लिखा हुआ है वैसे, इनसाइड इंजन सिलेंडर, देयरफॉर दीज इंजन्स आर वेरी नॉइजी। पहला इंटरनल है, बहुत ही नॉइजी होता है। नॉइजी क्यों? मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट हो रहा है, पिस्टन जो मूव कर रहा है बहुत ही मेटल टू मेटल का, सिंस कंबशन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस इनसाइड द इंजन, तो इंजन से जो आवाज आएगी वो ज्यादा आएगी। ठीक है, कंबशन का आवाज आएगा, कंबशन का जो फ्यूल बर्न होगी उससे भी आवाजें आएंगी। वो बर्न होके जो इंजन की वॉल्स हैं, साइड वॉल्स हैं, उस पर फोर्स लगाएंगे, उस पर कोलाइड होंगी, उसकी वजह से बहुत सारे नॉइज क्रिएट होंगी जस्ट इनसाइड द इंजन। ओके, तो इसमें बहुत ज्यादा नॉइज होगा। फर्स्ट पॉइंट इज द कंबशन ऑफ फ्यूल, दिख रहा है आपको? फर्स्ट पॉइंट, द कंबशन ऑफ टेक्स प्लेस इनसाइड द इंजन सिलेंडर, ये आपको पता चल गया है। इट ऑक्युपाइज लेस स्पेस। आप देखिए ऊपर इस डायग्राम में छोटा कौन है इंजन? सर इंटरनल। इंटरनल वाला सर। इंजन। ठीक है, तो इसीलिए तो सोचिए अगर इस इंजन से हम बाइक चलाते हैं तो आप दिखाई नहीं देते, उसमें कहाँ हो आप? नहीं दिखाई देते फिर अगर एक्सटर्नल कंबशन इंजन से बाइक चलाते तो। मतलब ये नहीं कि एप्लीकेशन इसका ये है कि आप दिखाई दें बाइक को चलाने के लिए, ऐसा नहीं है, बट मैं ये बता रहा हूँ कि ये कितना बल्कि होगा कि जो ह्यूमन बीइंग चला रहा है इस बाइक को वो नहीं दिखाई देगा। ओके, सो थर्ड इज दीज इंजन्स डू नॉट रिक्वायर्स अ बॉयलर फर्नेस, इसी वजह से तो ये छोटा है, लेस स्पेस ऑक्युपाई करता है। फोर्थ इज सिंस कंबस्शन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस इनसाइड इंजन सिलेंडर, ये नॉइज मैंने बता दिया। फिफ्थ है द थर्मल एफिशिएंसी इज हाई अबाउट 35 to 40%, हाई है, ये हाईएस्ट है 40%, इससे ज्यादा नहीं मिल पाता इंजन से। ठीक है, बहुत ही कम एफिशिएंसी मिलती है, लेकिन ये हाई क्यों बोला जा रहा है? विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। ओके, तो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में फ्यूल टेक्स the combustion of fuel takes place outside the engine cylinder. It occupies more space because boiler, furnace and condenser are there, thus it is heavy and cumbersome. Transportation के लिए सही नहीं है। Fourth is since the combustion of fuel takes place outside the engine cylinder, therefore the engines are smooth and silent. ठीक है, सेम पॉइंट है। अब इसकी एफिशिएंसी 20% से ज़्यादा होती ही नहीं है।
20% से ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। तो दिस वन फॉर दिस इज फॉर एक्सटर्नल combustion engine and this is for internal combustion engine, right? Moving forward, the nomenclature. अब आपको पता है इंजन्स डीजल पे भी काम करती हैं, पेट्रोल पे भी काम करती हैं। अभी आपको वो हम लोग आगे भी देखेंगे कि अगर पेट्रोल इंजन है उसमें अगर डीजल डाल दें तो क्या होगा, अगर डीजल इंजन है उसमें पेट्रोल डाल दें तो क्या होगा, वो अपकमिंग क्लासेस में देखा जाएगा क्या होगा। यहाँ पे जो मैंने लेफ्ट साइड में डायग्राम बनाया है ये स्कीमेटिक डायग्राम है। अब इस स्कीमेटिक डायग्राम में मैंने ये जो डायग्राम है, अब ये डीजल भी हो सकता है, पेट्रोल भी हो सकता है, कुछ चीजें चेंज होंगी, आपको दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है फ्यूल इंजेक्टर और उसके बाद ऑब्लिक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बताइए, ऑब्लिक के बाद स्पार्किंग प्लग। तो अब ये डिपेंड करता है कि हम डीजल यूज करने जा रहे हैं या पेट्रोल, उस पे डिपेंड करेगा कि फ्यूल इंजेक्टर यूज होगा या स्पार्क प्लग यूज होगा। अगर आपको बाइक को पहचानना है कि ये डीजल इंजन है या फिर पेट्रोल इंजन है तो आप चेक कर सकते हो कि उसमें स्पार्क प्लग है या नहीं है, ठीक है। तो देखेंगे कि स्पार्क प्लग की जरूरत किस इंजन को जरूरत पड़ती है, पेट्रोल को या डीजल को, वो सब देखेंगे हम लोग अपकमिंग क्लासेस में। तो यहाँ पे एयर और फ्यूल का मिक्सचर आ सकता है, हो सकता है यहाँ पे सिर्फ फ्यूल आए, हो सकता है सिर्फ एयर आए, तो ये डिपेंड करता है। लेकिन मैं यहाँ पे कंपोनेंट्स दिखाने जा रहा हूँ कि क्या क्या नाम है उस कंपोनेंट्स के। तो जैसे यहाँ पे इनलेट वाल्व भी होगा, एग्जॉस्ट वाल्व भी होगा, ठीक है। यहाँ से फ्यूल और एयर के मिक्सचर आएगा और वो बाहर भी निकलेगा, जो बाहर निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, एग्जॉस्ट गैसेस या प्रोडक्ट्स। जो केमिकल रिएक्शन होंगे यहाँ पे, केमिकल रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे, उससे कुछ प्रोडक्ट बनेंगे, वो प्रोडक्ट भले ही हमको बाहर निकाल देना है, एग्जॉस्ट गैसेस हैं, बाई प्रोडक्ट्स हैं, उसको हम निकाल देंगे बाहर, तो एग्जॉस्ट गैसेस हैं। मैंने जो एक्स्ट्रा मैं बोला था कि लेक्चर इसमें लूंगा, उसमें एक एक्स्ट्रा लेक्चर ये है कि हाउ द साइलेंसर आर यूज्ड, इज इट एक्चुअली कॉल्ड एज अ साइलेंसर, जहाँ पे गैसेस बाहर निकलती हैं उसको साइलेंसर बोलते हैं या क्या बोलते हैं, साइलेंसर बोलते हैं। तो साइलेंसर क्यों बोलते हैं ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मैं कंपोनेंट जो है बहुत ही कम दिखाया गया है कि पिस्टन है, ये पिस्टन जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद जो पिस्टन जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है कनेक्टिंग रॉड से, ठीक है। उसके बाद जो कवर्ड किया गया उसको बोलते हैं क्रैंक केस। अभी कनेक्टिंग रॉड किसको रोटेट कराएगा, क्रैंक शाफ्ट को ऐसे ऐसे रोटेट कराएगा। अभी क्रैंक शाफ्ट देखिए आप, ये क्रैंक है, ये क्रैंक शाफ्ट, ये सर्कुलर रॉड है। आप ये फ्रंट व्यू देख रहे हो किसी सिलेंडर का, आप अगर फ्रंट व्यू इधर से देखोगे तो क्या दिखेगा, सर्कल दिखेगा, वो सर्कल यहाँ पे दिख रहा है। तो क्या किया जा रहा है, ये फोर्स ऐसे लगा रहा है, ये फोर्स लगाएगा तो ये रोटेट होगा, ये रोटेट होगा तो ये शाफ्ट को भी रोटेट करेगा। ये हमारा पर्पस कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे कि हमने शाफ्ट को रोटेट करा दिया। यहाँ पे हमको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मिल गई है। इस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का यूज हम बहुत ही इजीली कर सकते हैं किसी भी चीज, किसी भी कोई भी मशीन बनाने के लिए। हमें हमारा मेन मोटो ये है, हमारे पास एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन कैसे हो रहा है आप देख रहे होंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, पिस्टन का मूवमेंट। अब ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करना हमको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में, तो किसके थ्रू हो रहा है, एक बीच में लगा है कनेक्टिंग रॉड और एक क्रैंक शाफ्ट, उसकी थ्रू आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को या बोले रोटेशनल मोशन को या ट्रांसलेशनल मोशन को रोटेशनल में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक एंड क्रैंक शाफ्ट। यहाँ पे एक चीज गलत लिखी हुई है, क्रैंक शाफ्ट ये नहीं है, क्रैंक शाफ्ट ये नहीं है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो ये है क्रैंक शाफ्ट, ये क्रैंक शाफ्ट, दिस इज क्रैंक, दिस इज क्रैंक। और ये क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड जिससे जुड़े हैं उसको बोलते हैं क्रैंक पिन,
क्रैंक पिन, एक पिन लगा दिया गया है। जैसे आप देखो बाइक्स की चेन्स में दो कई सारे लिंक्स होते हैं, छोटे छोटे लिंक्स होते हैं, इन दोनों ये ऐसे ऐसे लिंक्स होती हैं जिनको जोड़ के चेन्स बनाई जाती हैं। अभी दो चेन्स को जोड़ने के लिए यहाँ पे एक पिन लगाया जाता है, यहाँ पे भी एक पिन लगाया जाता है, बहुत सारे पिन्स होती हैं। वैसा ही पिन यहाँ पे उसको बोलते हैं क्रैंक पिन, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे जो पिन है उसको बोलते हैं पिस्टन पिन। ठीक, यहाँ पे संप यूज किया जा रहा है, यहाँ पे अगर फ्यूल है, ठीक है, यहाँ पे भी हो सकता है फ्यूल हो, और फ्यूल हम यहाँ से भी एंटर करा रहे हैं। तो दो तरह के फ्यूल होते हैं, दो तरह के इंजन है, मैंने बताया, पेट्रोल और डीजल, और 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक, इन सबों के कॉम्बिनेशन है। तो उसमें से कौन सा इंजन में संप यूज हो रहा है वो भी हम लोग देखेंगे आगे। तो ये जनरलाइज्ड डायग्राम था। यहाँ पे अगर देखें स्पार्क प्लग लगा हुआ है, और स्पार्क प्लग किस में होता है, आप कोई बता सकता है क्या, पेट्रोल या डीजल? पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन। तो ये पेट्रोल इंजन का डायग्राम है। डीजल इंजन का भी देखेंगे जब डिफरेंस देखेंगे हम लोग। तो एक्चुअल में मैं दिखाना ये चाह रहा था कि यहाँ पे क्या क्या मतलब कंपोनेंट्स हैं, उनके नाम क्या है। तो यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी दिख रहा है। तो यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट आपका कहाँ है, ये है क्रैंक शाफ्ट जो रोटेट होगा, ये पार्ट ये रोटेट होगा। ठीक है, ये इसको ऐसे से घुमा रहा है कनेक्टिंग रॉड की वजह से, तो ये अपने आप शाफ्ट घूम रही है। शाफ्ट किससे जुड़ी है, इससे। ठीक है, ये है पिस्टन। ये जो खाली जगह है कंबशन चेंबर है। जो पिस्टन के चारों तरफ आपको सामने से दिख रहा होगा क्या है, सिलेंडर है। ये कूलिंग के लिए यूज किया जाएगा। जो वॉल्स है इसके बाद में सिलेंडर के जो वॉल्स हैं उसमें कूलिंग के लिए स्पेस छोड़ा गया, और यहाँ पे कूलिंग लुब्रिकेंट्स को सर्कुलेट कराया जाता है। वो आता है, हीट वहां से लेके बाहर जाता है, फिर ठंडा होता है रेडिएटर से। रेडिएटर फैन लगे होते हैं कार्स में, रेडिएटर फैन। जो बाइक्स होती हैं उसमें रेडिएटर फैंस की जरूरत नहीं है उतना, बस एयर फिल्टर की जरूरत है। तो वहाँ पे रेडिएटर फैंस क्यों ना लगे, क्योंकि आपको डायरेक्ट वहां से कांटेक्ट आ रहा है एयर का। ठीक है, तो वो एयर उसको ठंडा करती है, लुब्रिकेटिंग ऑयल को जो गर्म होकर बाहर निकली है उसको ठंडा करती है, फिर वो ठंडा होता है, फिर वापस जाता है सिलेंडर वॉल्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे इतना कूलिंग ऑयल्स ये सब की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है आपको जानने की। आपको मेन पर्पज ये मैकेनिक्स समझना है, हमको इंजन के मैकेनिक्स को समझना है। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल्स यहाँ पे साइड में जो ग्रीन कलर की आपको दिख रही है, ये सारी लुब्रिकेटिंग ऑयल्स हैं, कूलिंग ऑयल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे वॉल लगा हुआ है, कुछ वॉल्स हैं जो जब नीचे जाएगी तो ये वॉल ओपन है या क्लोज है, ये बताइए पहले आप। क्लोज है। ये अगर वॉल नीचे मूव करेगी नीचे, तो वॉल ओपन होगा या क्लोज होगा? ओपन होगा। किसी को क्लोज लग रहा है क्या, किसी को क्लोज लग रहा है? किसी को क्लोज तो नहीं लग रहा है। नो सर। जब ये यहाँ पर आ जाएगी तो यहाँ पर ऐसा होगा, ये वॉल यहाँ पे आ जाएगी। अगर ये नीचे प्रेस हुआ तो ये बन जाएगा वॉल, ऐसा हो जाएगा। तो आपको लगता नहीं ये खाली जगह हो गया? तो जो मिक्सचर है एयर का या फ्यूल का, या प्योर एयर फ्यूल है या सिर्फ एयर है, तो ये यहाँ से साइड से निकल जाएगा बाहर, अंदर आ जाएगा कंबशन चैम्बर में। ठीक है, और यहाँ पे एग्जॉस्ट गैस के लिए वॉल बना हुआ है, ये भी अगर नीचे आएगा तो एग्जॉस्ट गैस बाहर निकलेगी। सबका टाइमिंग फिक्स है कि कब किसको ओपन होना है, कब किसको क्लोज होना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस ऑन पीवी एंड टीएस डायग्राम। ये आप लोग पहले से जानते हो। पहला है आइसोकोरिक प्रोसेस। What is the meaning of isochoric process? Pressure constant. Volume constant. Volume is constant. Volume is constant. Okay, volume is constant. पहले तो मैं ये लिख दूं कि जो पीवी डायग्राम है वो हमें क्या देता है, और जो टीएस डायग्राम है वो हमें क्या देता है। ये जो पीवी डायग्राम है ये हमें वर्क डन देगा, ये पहले भी बताया हूं मैं। और जो ये टीएस डायग्राम है ये क्या देगा, हीट ट्रांसफर।
ये वर्क ट्रांसफर है, नॉट एक्चुअली वर्क डन, इट इज वर्क ट्रांसफर। ठीक है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस टीएस डायग्राम, पीवी डायग्राम बनाते हैं हम लोग। पीवी डायग्राम, यहाँ पे है P, ये है वॉल्यूम। वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो प्रोसेस कैसा होगा, कैसे होगा, स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कर्व, कैसा होगा, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल। वर्टिकल। गुड, वर्टिकल होगा। पॉइंट नंबर 1 to 2, दिस प्रोसेस इज आइसोकोरिक प्रोसेस। अब जो पीवी डायग्राम का जो एरिया है 1 से 2 प्रोसेस के लिए, वो एरिया क्या देता है, वर्क ट्रांसफर। ये वर्क ट्रांसफर कितना होगा आइसोकोरिक प्रोसेस में? 0। एरिया इज 0, तो वर्क ट्रांसफर इज ट्रांसफर इज 0। अब ऐसा ही हम लोग टीएस डायग्राम बनाते हैं। आई होप सबको विजिबल है। विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, टीएस डायग्राम। S is entropy, T is temperature. Okay, S is entropy, T is temperature. ये प्रोसेस कैसा होगा उसको समझने के लिए हमें एक इक्वेशन है उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको समझने के लिए आपको याद होगा हमारे पास एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है, PV is equals to NR। क्या होती है बताइए? PV is equals to nRT। PV equals to nRT। और देखिए आइडियल गैस इक्वेशन को डिफरेंशियल फॉर्म में TDS इक्वेशन से दिखाते हैं। TDS इज DU प्लस PdV, या फिर ये इसके बराबर भी हो सकता है DH प्लस माइनस VdP। DH क्या है, एंथैल्पी डिफरेंस, और DU क्या है, इंटरनल एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, तो ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक पे क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम, तो हम ये वाला यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला यूज कर सकते हैं जिससे एक टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक टर्म कौन सा 0 हो जाएगा, DV किस में लगा हुआ, DV 0 हो जाएगा। DV किस में 0 है, ये, तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन होगी TDS इक्वल्स टू DU आपको पता है mCp डेल्टा T, TDS। ठीक है, तो DS बाई DT क्या होगा, सॉरी DT बाई DS बताओ क्या होगा, DT बाई DS, T upon mCp। T upon mCp। हाँ जी, DU and CV DT। MCV, सॉरी MCV। CP होता है H वाले एंथैल्पी के फॉर्म में, T अपॉन MCV। अब दिख रहा है आपको, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा स्लोप इंक्रीज होगा किसका, टीएस डायग्राम का। ये क्या है, स्लोप है टीएस डायग्राम का। स्लोप किसका है, टीएस डायग्राम का है। ये किसका है, dt बाई ds क्या होता है, स्लोप होगा। जैसे y और x में कर्व होता है तो dy बाई dx क्या होता है,
स्लोप होता है, ठीक है। तो इस स्लोप का रिलेशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सॉरी टेम्परेचर। ये मास है और CV ये कांस्टेंट है। टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा dt/ds का स्लोप क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। इसका मतलब करो कैसा बनेगा 1 से 2, बताइएगा। मैं बनाने जा रहा हूँ, ऐसा होगा या ऐसा होगा, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, कौन सा करेक्ट है? कौन सा करेक्ट है? ऊपर वाला। ऊपर वाला करेक्ट है, दिस इज रॉन्ग। स्लोप इंक्रीज हो रहा है, देखेंगे आप एक पॉइंट पे, यहाँ पे स्लोप ड्रॉ किया आपने, एक यहाँ पे स्लोप ड्रॉ किया, और किसका स्लोप ज्यादा है? ये थीटा देखिए कितना है, और ये थीटा देखिए कितना है, ठीक है। तो स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग, स्लोप इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझने के लिए मैंने बताया स्लोप को कैसे देखेंगे, ओके। तो मैं एज इट इज रहने दूं या फिर रॉन्ग वाला है हटा दूं? नोट्स में रहने दीजिए आप लोग, ताकि आपको समझ में आए कि सही कौन सा है, गलत कौन सा है, ठीक है। तो पहला सही है, ये वाला पहला सही है, पहला नहीं बोलते हैं, ए लिखते हैं इसको, ए, दिस इज बी, ए इज करेक्ट, बी इज रॉन्ग। चलिए अब सेकंड प्रोसेस देखते हैं। सेकंड प्रोसेस का नाम क्या है? आइसोबारिक। आइसोबारिक, आइसोबारिक, आइसोबैरिक। अभी बैरिक, बार का मतलब क्या होता है? प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर इज कांस्टेंट, ओके। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। PV। तो यहाँ पे हीट आपको पता चल रहा है, हीट कैसे निकालेंगे 1 से 2। हीट यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर है इस डायग्राम में, हीट ट्रांसफर 0 होगा या नॉन 0 होगा? एरिया मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। मिलेगा मिलेगा सर। एरिया मिलेगा, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर इज नॉट इक्वल्स टू 0, ओके। तो इसमें बताइए प्रेशर जो लाइन होगी वो कर्व होगा या स्ट्रेट लाइन होगी या हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी या वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होगी? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी, गुड। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। This is horizontal straight line from 1 to 2 in this direction. वर्क डन मिलेगा कि नहीं? सर मिलेगा। मिलेगा। वर्क डन इज नॉट इक्वल टू 0। और वो कैसे निकलेगा? ये जो एरिया है नीचे, ये जो नीचे एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला, ये इसको कैसे निकाल सकते हैं? PdV, ठीक है। PdV मतलब क्या है? यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे फर्स्ट है, तो एरिया कैसे निकल जाएगा? P इंटू V2 माइनस V1, राइट। दिस इज वर्क डन इन दिस प्रोसेस, फर्स्ट टू सेकंड में जो हमको एरिया मिल रहा है, दैट एरिया इज वर्क डन इन PV डायग्राम। नेक्स्ट इज TS diagram for the same process. TS diagram for the same process. TS diagram for the same process. ऑडिबल हूं मैं?
अब यहाँ बताइए आप लोग कि कैसा बनेगा। अभी मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा था TDS इक्वेशन, ये भी एक आइडियल गैस इक्वेशन का ही फॉर्म है जिसको डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो जो सेकंड है, अभी मैंने TDS इक्वेशन लिखा था, TDS इक्वल्स टू du प्लस पी dv, और एक और लिखा था मैंने dh माइनस v dp। कौन सा यूज करूं जिससे स्लोप का सेकंड पता? वाला। सेकंड वाला यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये 0 हो जाएगा और आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए। तो TDS इक्वल्स टू DH को क्या ले सकते हैं? mCp dt, mCp dt, दिस इज mCp dt। अब यहाँ से dt by ds निकाल सकते हैं। dt by ds कैसे निकलेगा? कितना होगा? T by mCp। T by mCp। ओके, स्लोप क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वो भी वैसा ही बनेगा, सेम टू सेम। यस सर। ओके, तो सेम बनेगा, मतलब इंक्रीजिंग ऐसे 1 से 2। ओके, 1 से 2 आइसोबैरिक प्रोसेस, 1 से 2। अब आपसे कोई पूछे कि कौन सा, ये तो हमने 2 बना दिया, आइसोबैरिक के लिए भी आइसोकोरिक के लिए भी, तो कौन सा करेक्ट है? मतलब अगर करेक्ट का मतलब है कि अगर दोनों एक साथ बना दें तो कैसे पता चलेगा कि आइसोबैरिक का कौन सा है, आइसोकोरिक का कौन सा है? कैसे पता चलेगा? स्लोप से। किसका स्लोप ज्यादा है? आइसोकोरिक का ज्यादा है। आइसोकोरिक का ज्यादा है। देखिए वो CV की वैल्यू कम होती है CP से। CP माइनस CV is equal to exactly. So dt by ds for volume equals to constant process, dt by ds for pressure equals to constant। किसका ज्यादा होगा? आइसोकोरिक प्रोसेस का, बिकॉज ये कितने बराबर है? T अपॉन m CV, और ये किसके बराबर है? T अपॉन m CP। बताओ CP ज्यादा होता है कि CV? सर CP इज ग्रेटर देन CV। ठीक है, CP इज ग्रेटर देन CV, तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा ज्यादा होगा? T upon mCV will be more because it is in denominator। ओके, तो दोनों केस में ना ही हीट ट्रांसफर 0 है, ना ही वर्क डन 0 है। ठीक है, थर्ड इज isothermal process। Temperature is constant। बताओ P and P कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल, स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल, कर्व होगा तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्लोप। बताइए। EV इक्वल्स टू क्या होता है? कांस्टेंट। MRT। EV इक्वल्स टू MRT। टेम्परेचर क्या हो गया है? कांस्टेंट। ओके, टेम्परेचर बिकम्स कांस्टेंट। ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया, तो PV इक्वल्स टू सुपर कांस्टेंट।
ओके, सो P इज डायरेक्ट इक्वल्स टू C अपॉन V। ये ऐसा ही है जैसा होता है y इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन x। ये कौन सा कर्व बनता है इससे? पैराबोला, हाइपरबोला, हाइपरबोला। हाइपरबोला, हाइपरबोला। ठीक है, ये हाइपरबोला का फंक्शन है, तो हाइपरबोला बनेगा। हाइपरबोला कैसा होता है? x इंक्रीज होगा तो y डिक्रीज होगा, x इंक्रीज होगा y डिक्रीज होगा, राइट? ठीक है, तो ये बनेगा ऐसा 1 to 2, प्रोसेस फ्रॉम 1 to 2, वर्क डन इज नॉट इक्वल्स टू 0, राइट? सही है, सही है। टीएस डायग्राम, टीएस डायग्राम, टीएस डायग्राम क्या होगा? टीएस डायग्राम कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सर वर्टिकल लाइन होगी। वर्टिकल होगा। टेम्परेचर नहीं कौन सर, हॉरिजॉन्टल होगा, सॉरी। हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। यहाँ पे हीट ट्रांसफर 0 है। नो सर। हीट ट्रांसफर 0 है? नो नो। 1 to 2, हीट ट्रांसफर इज नॉट इक्वल्स टू 0। जो ये पूरा एरिया है ये क्या देगा हमको? हीट ट्रांसफर देगा। यहाँ एरिया निकालना आसान है क्योंकि एक रेक्टेंगल बन जाता है। यहाँ पे नहीं बन रहा है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन से निकलेगा। ठीक है, फोर्थ एंड लास्ट, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस। तो हम एडियाबैटिक प्रोसेस को नहीं पढ़ने जा रहे, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। रिवर्सिबल आइडियल है, आइडियल हो नहीं सकता, मतलब ये फिक्टिशियस है, ये ऐसा है नहीं, बट हम लोग आइडियल ही पढ़ते हैं बेसिक लेवल पे। ठीक है, तो जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक है उसको बोलते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, मैं लिख रहा हूँ, फोर्थ इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। इसका मतलब है रिवर्सिबल एडियाबैटिक का मतलब है आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक मतलब एंट्रोपी इज कांस्टेंट। ठीक है, तो अभी क्लास तो कंप्लीट हो चुकी है और टाइम भी कम ऑलमोस्ट। मैम बोल रही है क्लास के लिए, क्यों? सर 12 बजे। यस सर, 12 बजे। ओके, लेट मी टेक योर अटेंडेंस। आप लोग ट्राई कीजिएगा फोर्थ वन, द रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस कैसे बनेगा। ठीक है, दोनों पीवी डायग्राम एंड टीएस डायग्राम। टीएस डायग्राम में सिंपल से बता दो, वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल होगा? वर्टिकल। वर्टिकल होगा। वर्टिकल होगा, एंट्रोपी कांस्टेंट है, सीधा नीचे से ऊपर जाएगा। वर्टिकल होगा। ठीक है, वन टू टू टीएस डायग्राम ट्राई करेंगे आप लोग, पीवी डायग्राम इसका। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।